سنیے جی، بارش شروع ہو گئی ہے اور گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے ہی والے ہیں، ہم ان لوگوں کو کون سا بھوجن کھلائیں گے؟ اس لیے میں تو کہتی ہوں آپ کہیں جا کر بھوجن اکٹھا کریں، نہیں تو ہمارے بچے بہت کمزور ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو کسی چیز کی پریشانی ہو، اس لیے آپ جائیں۔ ہاں نکی، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہی ہوگا، نہیں تو ہمارے بچے بہت کمزور ہو جائیں گے۔ تم بچوں کا اور اپنا خیال رکھنا، میں جنگل میں جا کر بھوجن کا انتظام کرتا ہوں، اور بھوجن لے کر جب تک میں گھر واپس نہ آؤں تب تک تم گھر کا دروازہ مت کھولنا، ابھی تم بھی بہت کمزور ہو، اور بچوں کا خیال رکھنا، دیکھنا ہمارے انڈے کو کوئی پریشانی نہ ہو پائے۔ پھر چیکو چڑیا بھوجن کی تلاش میں جنگل بھٹکنے لگتا ہے۔ راستے میں جاتے جاتے بہت تیز بارش اور آندھی آ جاتی ہے، وہ وہیں پر پھنس جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دانا اکٹھا کر لیتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے اس کا پورا گھر ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور نکی چڑیا بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ اس کے انڈوں کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن نکی چڑیا کو بہت بھیانک چوٹ آئی تھی۔ چیکو چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نکی چڑیا تو بے ہوش تھی، وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر چیکو چڑیا کسی طرح کر کے اپنے انڈوں کو ایک گفا میں لے جاتا ہے اور وہ گفا میں سرکشت رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں آتا ہے کیوں نہ میں مینو موسی سے مدد مانگوں۔ پھر اس کے بعد میں وہ سیدھے مینو موسی کے پاس جاتا ہے، لیکن مینو موسی کا بھی گھر ٹوٹ گیا تھا۔ مینو موسی کو ساری بات بتانے کے بعد چیکو چڑیا اور مینو موسی دونوں نکی چڑیا کے پاس آتے ہیں۔ پھر چیکو چڑیا بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بلبل کو لے کر آتا ہے۔ بلبل نکی چڑیا کو چیک کرتا ہے اور اسے کچھ دوائیاں دیتا ہے اور ملہم پٹی بھی لگاتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد نکی چڑیا کو ہوش آ جاتا ہے۔ پھر جنگل کے سبھی پنچھی اکٹھا ہوتے ہیں، سبھی کا گھر ٹوٹ گیا تھا، کسی کا گھر اچھا نہیں تھا، اس لیے سب لوگ یوجنا بناتے ہیں۔ مینو موسی آپ ہی بتائیں اب کیا کیا جائے، سب کا گھر ٹوٹ گیا ہے، ایک کالو بھیا ہے، انہی کا گھر کیول سرکشت ہے، نہ جانے کیسے وہ گھر بنائے تھے، لیکن وہ تو بہت خڑوس ہیں، ہم لوگ کو گھر کے اندر جانے ہی نہیں دیں گے، اور بارش تو چھوڑو، اور بارش تو دیکھو 2-3 دنوں سے لگاتار ہو رہی ہے اور آندھی بھی بہت آ رہی ہے، ہم لوگ اس بارش میں کہاں جائیں گے؟ سردیاں تو بہت مشکل سے گزری اور سب کا راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہاں ہریالی طوطی، تم صحیح کہہ رہی ہو، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ جنگل کے سبھی پنچھی بہت پریشان ہیں، سب کا گھر بارش کے باڑھ میں بہہ گیا، اب کچھ نہ کچھ کر کے انتظام تو کرنا ہی پڑے گا۔ مینو موسی، میں نہ کہتا ہوں، میں نے جنگل میں بانس دیکھا ہے اور ڈھیر سارے پتے بھی ہیں، کیوں نہ ہم لوگ بانس کے اور پتوں کے گھر بنائیں، جس سے کہ ہم لوگ کا گھر مضبوط ہو اور بارش بھی اندر نہ آ پائے۔ چیکو بیٹے، اگر تم کہہ رہے ہو تو صحیح ہی ہوگا، ہم لوگ کل صبح ہوتے ہی جنگل میں چلیں گے اور بانس کی لکڑیاں اور پتے اکٹھا کر لائیں گے اور اپنا اپنا گھر تیار کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، چھوٹی چڑیا کو کوئی کام مت کرنے دینا، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی ہے اور بچے انڈوں سے نکلنے والے ہیں، اس لیے تمہیں دونوں کا خیال رکھنا ہوگا، نہیں تو چیل اٹھا کے لے جائے گا۔ میں نے سنا ہے جنگل میں جتنے بھی انڈے ہیں چیل اٹھا کے لے جاتا ہے۔ مینو موسی میں نے بھی دیکھا تھا کہ چیل ایک انڈے کو لے کر جا رہا تھا اور دوسرا انڈا ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں مٹھو طوطے، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ چیکو چڑیا اپنے انڈوں کا اور اپنی بیوی کا خیال رکھے، ہم لوگ مل کر ان کا گھر بنا دیں گے۔
मीनू मौसी, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बीबी का और अपने बच्चों का भी ख्याल रख लूँगा और अंडों को भी हिफाजत से रखूँगा। और आप देखना, मैं मजबूती से घर भी बना लूँगा। आप लोग बेफिक्र रहें। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग जैसे मेरे पड़ोसी हैं। फिर जंगल के सारे पंछी योजना बनाते हैं और जंगल के छोर पे चले जाते हैं। बांस काट के और पत्ते इकट्ठा करके ले आते हैं और सब लोग अपना अपना घर बनाने में लग जाते हैं। बारिश होते होते वो लोग अपना घर बना लेते हैं। इधर कालू कौवा और गौरी आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनिए मेरे प्यारे पतिदेव, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती मेरा पति इतना अच्छा है। जंगल में सबसे मजबूत घर हमारा ही था और देखो हम लोग का घर इतना मजबूत है कि हम लोग सर्दियाँ भी गुजार दिए और बारिश भी निकल जा रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पति इतना अच्छा भी घर बना लेता है। गौरी मेरी पत्नी, तुम कहो और मैं तुम्हारे लिए घर ना बनाऊं? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखा ना मेरी चालाकी, मैंने थोड़ा थोड़ा सामान सबसे लिया था और मेरा घर इतना मजबूत हो गया। सर्दियों में तो मैंने सबको एक अपने घर में बुला लिया था, लेकिन बारिश के मौसम में मैं किसी को पनाह नहीं दे सकता। सब लोग बहुत मतलबी हैं। लेकिन कालू जी, आप उन लोगों को मतलबी क्यों कह रहे हैं? देखा ना, उन लोगों ने ही तो पूरा हम लोग को सामान दिया, इसलिए तुम इतना अच्छा घर बनाए हो। और तुम उन लोगों को मतलबी ऐसे क्यों बोलते हो? मेरी प्यारी बीबी, तुम उन लोगों की चालाकी नहीं समझ पाती हो। वो लोग अपना घर कमज़ोर बनाते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर में आएं और फ्री का राशन खाएं और फ्री में रहें। ऐसा अब ना होने दूंगा मैं। अरे वाह मेरे पति, आप तो बहुत होशियार हैं। मैं तो इस बारे में सोची भी नहीं थी। हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। इस बार कोई भी मदद मांगने आए, हम लोग उन लोगों को अपने घर में नहीं आने देंगे। लेकिन आपको तो पता है ना, अपना भी छत बहुत कमज़ोर हो गया है। सर्दियों में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई, इस वजह से छत कमज़ोर हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप भी बांस की लकड़ियाँ ले आएं और छत मजबूत कर लें, जिससे कि हम लोग को और भी दिक्कत ना हो और आराम से अपने घर में रह सकें। अरे गौरी, तुम फिक्र ना करो, ये घर बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगा चाहे कितने भी आंधी आए। देखा ना, 3-4 दिनों से आंधी आ रही है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन हम लोग का घर वैसे के वैसे पड़ा है। तुम फिक्र ना करो, बस चुपचाप अपने घर में आराम से रहो। इधर जंगल के सारे पंछियों का घर बनकर तैयार हो गया था और सब लोग अपने अपने घर में रहने लगे थे। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके दाना भी इकट्ठा कर रहे थे। चीकू चिड़ा भी अपना घर बना रहा था, लेकिन उसका घर तैयार नहीं था। वह अपनी बीबी और बच्चों को छोड़कर घर बनाने के लिए बांस की लकड़ियां लेने जाता था। एक दिन चीकू चिड़ा बांस की लकड़ियां लेने गया ही था, इधर चील आ जाता है। हो, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। 4-4 अंडे हैं, मैं तो आज बहुत भोजन करूँगा। चिड़िया भी सो रही है, आज तो मैं इन अंडों का ऑमलेट बनाऊँगा और पेट भर के खाऊँगा। निक्की चिड़िया चील की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और चील को देखकर रोने लगती है। चील भाई, आप मेरे बच्चे को कुछ ना करें। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन आप मेरे अंडों को कुछ ना करें। मुझ पर रहम करें चील भाई। छोटी चिड़िया, तुम बहुत बोलती हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। चुपचाप चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के साथ तुम भी मारी जाओगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। चील भाई, आप चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना करे। छोटी चिड़िया, तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, तुम्हें सबक तो सिखाना ही होगा। चील चिड़िया पे हमला करने जा ही रहा होता है, तभी अंडे से एक बच्चा निकलता है।
बच्चा एकदम चील की तरह होता है। चील यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है, सुनो छोटी चिड़िया, तुम ये अंडा कहाँ से पाई हो? और इसमें से तो चील का बच्चा निकला है, और तुम ये अंडा लेकर यहाँ पर क्यों हो? चील भाई, मैंने ये अंडा आंधी में पाया था। मेरे बच्चों के साथ ये पड़ा हुआ था, बहुत कमज़ोर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने अंडे की तरह इसकी सुरक्षा की है और इसकी देखभाल की है। आप देखें, बच्चा भी तंदुरुस्त है। छोटी चिड़िया, तुमने आज मुझ पे बहुत कृपा की है। मेरा बच्चा खो गया था, मैं जंगल जंगल भटक रहा था और इसी से परेशान होकर मेरी बीबी बीमार पड़ गई है। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन वो नहीं ठीक हो रही है। तुमने मुझ पे बहुत बड़ा कृपा किया है। मेरे बच्चे को देखकर वो खुश हो जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूँगा। फिर निक्की चिड़िया सुकून में आ जाती है और अपने बच्चों को देखने लगती है। धीरे धीरे करके उसके अंडों से भी बच्चे निकल जाते हैं। बच्चे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन साथ में कमज़ोर भी थे। थोड़ी ही देर में चीकू कालू कौआ के पास जाता है। कालू भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी बीबी परेशान है, मैं अकेले घर नहीं बना पा रहा हूँ। मीनू मौसी ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं उनसे मदद नहीं ले सकता। मैं सोच रहा था कि कुछ दिन आप मेरे बीबी और बच्चों को अपने घर में रख लो, फिर मैं तुम्हें दोबारा अपने घर में रख लूँगा, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो। चीकू चिड़े, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग का घर वैसे भी बहुत मजबूत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी बीबी का कोई ठेका नहीं ले रखा हूँ। सर्दियों में मैंने तुम सबको अपने घर में रखा था, लेकिन अब मैं अपने घर में किसी को नहीं रख पाऊँगा। फिर चीकू चिड़ा उदास होकर घर वापस आ जाता है, लेकिन जब वह अपने बच्चों को देखता है तो खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर में मीनू मौसी भी निक्की और चीकू चिड़े के पास आ जाती है और उन लोग के पास बैठ जाती है। फिर सभी लोग मिलकर घर बनाते हैं। चीकू चिड़ा का भी घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वह अपनी बीबी बच्चों को लेकर घर में आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आ जाती है। सबका घर तो नया बना था, सबका घर बहुत मजबूत था, लेकिन कालू कौआ का छत उड़ जाता है और वह बारिश में भीगने लगता है। गौरी, छत तो उड़ गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने किसी को मदद नहीं दिया, कोई मुझे मदद नहीं देगा, अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? कालू मेरे पति, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी निक्की चिड़िया के पास जाती हूँ। छोटी चिड़िया बहुत दयालु है, वो ज़रूर मदद करेगी, तुम देखना। फिर गौरी कवि छोटी चिड़िया के पास आती है और छोटी चिड़िया से मदद मांगती है। गौरी बहन, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम लोगों ने मुझे मदद देने से मना कर दिया था, और अब मैं तुम लोग को कैसे अपने घर में आने दे सकता हूँ? लेकिन चीकू भाई, अगर आप अपने घर में नहीं रखेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, और बारिश बहुत तेज है, आप तो देख ही रहे हैं। इतने में निक्की चिड़िया बोलने लगती है, सुनिए जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने सर्दियों में हम लोग की कितनी मदद करी थी, हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए। इतने में ही कालू कौआ आ जाता है और उन लोगों से माफ़ी मांगता है। चीकू चिड़ा भी उसे माफ़ कर देता है और अपने घर में पनाह दे देता है। उसके बाद में सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।